10th generation iPad are also in the offing. Our top focus, Ujjain, famous for its Mahakal temple, today saw a VIP visit and some pretty high drama. Before we start our debate on that, a quick look at how things played out today. Once again, with some more information. Firstly, we are on our way to Ujjain Mahakaleshwar temple, which I'm very excited about right on the eve of our release. I'm very happy we found the time to go. This is how the journey to Ujjain started for the team of Brahmastra. But the hope for some positive energy from Mahakal soon turned into something fairly negative. The Bajrang Dal, keeping in line with its nuisance value, showed up at the temple with black flags and started protesting against Ranbir and Alia. Why? Because 11 years ago, Ranbir had said he's a big beef lover. My family's from Peshawar, so a lot of Peshawari influences in the food has also come with them. I'm a more mutton, paya, beef. Red meat, yeah. I'm a big beef guy. यहाँ पर रणबीर कपूर का विरोध करने के लिए आए हैं। उसने हमारी गाय माता को लेकर अश्लील बयान दिए हैं, गौ माता को लेकर, गौ माता के बीफ को लेकर हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और यहाँ पर हमसे विरोध करने आए। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट इस महाकाल बाबा के मंदिर में नहीं घुसने देंगे उसको। जो मीडिया के चैनल के ऊपर रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गौ भक्षक को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसने देगा बजरंग दल। The police did step in, but given the protests, Ranbir and Alia decided not to go for the Sandhya Aarti. The district collector, at whose residence they took refuge, said the decision was made keeping in mind Alia's pregnancy. She's 5 months pregnant. But the Home Minister of Madhya Pradesh, Narottam Mishra, played to the gallery, blaming Ranbir for hurting Hindu sentiment. देखिए, प्रदर्शन होना किसी विषय का ये अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहाँ पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहाँ के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना आहत हो। कोई दर्शन करने आया था तो करने देना था। पहले आदरणीय इनको मोदी जी का विरोध करना चाहिए। इनके भाजपा के विधायक, सांसद, सब लोगों को कि किरण रिजिजू जी को उठा, वो तो खुलेआम बोलते हैं। मतलब गाय माता, मध्य प्रदेश में गाय माता है, दूसरे प्रदेशों में हम बीफ खाता है। The director of Brahmastra, Ayan Mukherjee, did make it to the temple but refused to comment on the protests. मेरी ख्वाहिश है कि फिल्म बहुत सफल हो। हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, लेकिन मुझे वो एक्चुअली अभी कहना ही नहीं है। हमसे हमारा पूरी तरीके से काम हो चुका है और बस अभी लोगों को फिल्म अच्छी लगे, लग जाए जो होगा फिल्म का सर एक आखिरी सवाल, जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ उनको लिए कुछ कहें? सर कुछ कहने को है नहीं। Mahakal is one of the 12 Jyotirlings in India, one of the country's most revered Shiva temples. No rules say that beef eaters or non-vegetarians cannot enter its premises. Ironic then that Ranbir, playing a protagonist called Shiva in the film, was intimidated into staying away from Shiva's most powerful temple. For Mirror Now, I'm Shreya Dhondiyal. Now, Ayan Mukherjee, the director of the film, didn't say anything on the temple premises, but did break his silence at an event in Delhi this evening. Listen in. I was feeling really bad that honestly Ranbir and Alia did not come with me for darshan to Mahakaleshwar temple. आपको थोड़ी history मैं बताता हूँ उसकी. I had gone to Mahakaleshwar before my motion poster release. Actually, that time also I was coming to Delhi. And I had told myself that before the release of the film, I will definitely go again. And both of them were very keen to come with me.
And honestly, till the end, they were very keen that they will come. But when we reached there and we heard about this, I felt a little bit that, let me go alone. Eventually, I had gone to seek blessings and energy for the film, and that blessing is for everybody. And I just didn't want to take Alia there, in her current condition as well. So I went alone. Though I felt very bad, and honestly, when I went, I did feel that they could have also come and gotten their darshan. So that is on me. Okay, we have heard from Brahma's stream. Now let's hear from the chief priest of the Mahakal temple, where that rather unfortunate sequence of events played out. Mahesh Pujari ji is joining us on top of Urban Debate today. Pujari ji, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. आज बहुत सारे लोग आते हैं महाकाल टेम्पल में आप दर्शन करने शिव भगवान के. रणबीर और आलिया भी आए. इतना बड़ा क्या गुनाह हो गया था उनसे कि 11 साल पहले कोई बात बोली और उसकी वजह से आज उनको दर्शन नहीं करने दिया गया. हमारे में संस्कृति ये है कि पूर्व जन्म को भी माना जाता है, और यदि एक बार कोई दोष या पाप करता है, उसके पाप और दोष सदा बने रहते हैं. ऐसे हमारी संस्कृति है. हम में तो ये भी है कि महाभारत के अंदर धर्मराज ने नरोवा कुंजरवा करके जो झूठ बोला था, उसके लिए जब वो स्वर्ग को गए तो उनकी एक अंग भंग हो गई. तो ये हमारी परंपरा है. उन्होंने यदि पाप किया था, बोला था, दोष किया था, इसलिए उस दोष से वो कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं. हाँ, यदि वो उसका प्रायश्चित कर लेते तो निश्चित वो दोष मुक्त होते. दोष मुक्त उनको माना जाता और वो क्षमा मांग लेते हमारी संस्कृति के विषय को लेकर, तो फिर कोई बात ही नहीं थी. लेकिन पंडित जी, ये प्रोटेस्ट हुए क्यों? ये गुनाह कैसे हुआ? एक तो किसी ने 11 साल पहले कुछ बोला कि उनको बीफ खाना पसंद है. वो अकेले तो है नहीं जो बीफ खाते हैं और महाकाल के दर्शन करने आए हैं. ऐसे तो बहुत लोग आते हैं. मंदिर का प्रशासन तो कहीं नहीं कहता कि नॉन वेजिटेरियंस मंदिर नहीं आ सकते या जो बीफ खाते हैं नहीं आ सकते. तो ये प्रोटेस्ट हुई क्यों रणबीर और आलिया के खिलाफ बजरंग दल के द्वारा, और आप इसे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए बोला उन्होंने कि हिंदू समाज, सनातन धर्मों को मानने वाले लोग जब गाय मांस का विरोध कर रहे थे कि गाय मांस को न बेचा जाए न खाया जाए, और उस बीच में उन्होंने वो जो गाय मांस खाने वाले लोगों का सपोर्ट करके जो उन्होंने ये बात कही, वो अनुचित है. नहीं पंडित जी, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था. हम अपने व्यूअर्स को इनफैक्ट जब आपसे बातचीत खत्म हो जाएगी दिखाएंगे एक बार फिर कि एग्जैक्टली क्या बोला था रणबीर ने. उन्होंने किसी का सपोर्ट नहीं किया था. वो तो एक फूड शो में थे, खाने के शो में थे, और वहां जब उनसे पूछा गया कि उनको क्या खाना पसंद है, उन्होंने कहा कि मुझे बीफ खाना पसंद है. अब हमारे भाई जो हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको बीफ बहुत अच्छा लगता है, वो खाते हैं. हमारे भाई जो हैं केरल के, वो बीफ खाते हैं. और इन दोनों जगहों पर बीफ खाना कोई अपराध नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली लीगल. तो आप मुझे कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग और केरला के लोग महाकाल नहीं आ सकते हैं? ये किसने कहा कि ऐसे लोग ना आए? हमारी व्यवस्था हिंदू लोगों में तो ही है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है. वो उनके प्रदेश की जो भोजन व्यवस्था है, यदि वो उनका भोजन व्यवस्था में वो करते हैं तो उसको तो कोई, हम उसका तो कोई विरोध करते नहीं है. लेकिन यदि इस तरीके गौ मांस का यदि हिंदुस्तान के अंदर विरोध होता है और उसको यदि कोई चैलेंज देकर ये कहेगा कि मैं गौ मांस खा के आऊंगा, तो ऐसे विरोध होते रहेंगे. कुछ गलतफहमी हो रही है. मैं फिर कह रही हूं, क्योंकि वो हमारे नेटवर्क का क्लिप और प्रोग्राम था, मैं आपको कह सकती हूं कि वो 11 साल पहले था. रणबीर ने आज, कल या आज से एक हफ्ते पहले या महीने पहले ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं बीफ खा के ही महाकाल मंदिर जाऊंगा. ऐसी तो बात कभी उठी नहीं है. तो ये तो आपको भ्रम हो गया है. नहीं, ये कहा नहीं. बात ये है कि उसने कहा था मैं खाता हूँ. हाँ. और उसी का हिंदू सनातन धर्म उसका विरोध कर रहा है. इसमें कौन सी वो बहुत बड़ी बात हो गई? वो जो उन्होंने जो बोला उसके विषय में विरोध है. नहीं, विरोध ठीक है, लेकिन मंदिर में अंदर ना आने देना क्या ठीक है? ये शायद इस सवाल का जवाब आपको भी देना है. आप मुझे ये कह रहे हैं, आप मुझे साफ साफ बताइए, जो लोग बीफ खाते हैं वो मंदिर में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? मंदिर के रूल्स क्या कहते हैं?
देखिए, यदि वो प्रदर्शन करके आएगा कि मैं बीफ खा के आ रहा हूँ, मांस खा के आ रहा हूँ, तो फिर उसको रोकने के लिए ऐसे संगठन आ गया। बिल्कुल, यदि कोई आके आदमी दर्शन कर रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी, कौन वहां देखने जा रहा है, या कोई शराब पी के आ रहा है तो उसको सूंघने थोड़ी जा रहा, वो उसका दोष है, वो उसका पाप है। यदि वो मंदिरों की पवित्रता भंग करता है तो वो उसका दोष है। तो पंडित जी, फिर मैं कह रही हूँ, आपको कोई भ्रम हो रहा है? उसने ये कहीं नहीं कहा था कि मैं बीफ खा के ही महाकाल टेम्पल जाऊंगा। जो स्टेटमेंट जिसको बजरंग दल उछाल रहा है, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट हुए हैं, वो 11 साल पहले का स्टेटमेंट है। तो क्यों भाई उसको अंदर नहीं आने दिया गया? मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो व्यवस्था हुई है, जो विरोध हुआ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। मैंने नहीं कहा। अब ये जो बात हुई है, जब उस संगठन ने कहा कि इन्होंने ऐसा बोला, उन्हीं संगठनों ने उसको काले झंडे दिखाने की बात कही, उन्हीं ने उसका तो विरोध किया। और यदि वो विरोध सनातन धर्म के हित में है तो वो उचित है। नहीं, ये इस तरह का विरोध सनातन धर्म के हित में कैसे है? पंडित जी, ये सवाल है। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे को सही सारे जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको कह रहे हैं कि महाकाल टेम्पल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, प्रथा नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो नहीं आ सकते हैं। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बीफ नहीं खाती, लेकिन नॉन वेजिटेरियन हूँ और मैंने महाकाल के बहुत बार दर्शन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश पुजारी जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर panel this evening to you. We have Kunika Lal, who is an actor. She's also an advocate joining us. Ravi Rai is a film and television writer. He's a producer. He's a director as well. Ria D'Souza is a former actress. We'll be having Murtaza Ali Khan joining us at around 8:30 is what I'm being told. Rahul Ishwar is an activist. Vinod Bansal is national spokesperson of the VHP. And Jitendra Khurana is a Hindu activist. Mr. Bansal, I'm going to come to you first. We've heard from the Pandit ji of the Mahakal temple. You have seen the entire sequence of events. Please tell me, under what circumstances is the protest that we saw by the Bajrang Dal right? ना सर प्रोटेस्ट का, ना पैर प्रोटेस्ट का, बस प्रोटेस्ट करना है, किसी भी बात पे करना है। आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए तो मुझे बताइएगा। जी जी, हो गया। अनइंटरप्टेड जवाब दूंगा। नहीं, बिल्कुल हो गया। बंसल जी, हो गया, आप बोलिए। जी श्रेया जी, हाँ श्रेया जी, देखिए दो बातें हैं। अगर किसी जो पब्लिक डोमेन में जिसको स्टार बनाया पब्लिक ने, अगर वो किसी की भावनाओं को आहत करता है तो उस स्टार बनाने वाले को भी राइट है कि वो उसको डाउन भी कर सकता है। एक बात। दूसरी बात ये कि वो कब करेगा, क्या करेगा, इस समाज के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। ये हिंदू समाज है। आप देखिए कि अगर उसने कुछ गलत कहा है तभी तो उसको जवाब मिला। और दूसरी बात ये कि देखिए, जब उसको बोलने का अधिकार है, उसको खाने का अधिकार है, उसको रोकने का अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारा है। अगर हमें लगता है कुछ गलत किया तो निश्चित रूप से हम उसकी वॉइस रेज करेंगे ना। उसको भी तो पता लगना चाहिए कि मैंने कहां पर क्यों गलत कहा था। आप देखिए कि ओछी पब्लिसिटी बटोरने के लिए, और लोग अपने आप को जाने क्या समझते हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर आप स्टार अच्छे हैं, अगर आपको किसी ने स्टार बनाया तो किसने बनाया? जनता ने बनाया ना जी। ये व्यापक बृहद हिंदू समाज ने बनाया ना जी। उस हिंदू समाज की भावनाओं को आप ये कह के आहत करना चाहते हो कि आई एम प्राउड ऑफ ईटिंग बीफ, तो ये तो ठीक नहीं है ना जी। आपने कहा, आपने भी अपने शो में कहा कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा कि मैं बीफ ईटर नहीं हूं। आई अप्रिशिएट। देखिए, क्या खाना क्या नहीं खाना, दिस में बी योर चॉइस, बट कब और क्या कहना ये आपकी चॉइस तो है, लेकिन साथ साथ मेरी भी चॉइस है कि मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, उसका विरोध करता हूं, या उसको तत्काल कहीं रिजेक्ट कर देता हूं। यानी तो इसीलिए बजरंग दल ने, देखिए बजरंग दल ने उसको मंदिर जाने से नहीं रोका। हमने क्या बात कर रहे हैं आप? साउंड बाइट देखा ना अभी हमने पैकेज में। कोई विरोध ये नहीं अभी है, बिल्कुल ना बंसल जी, ये गलत बात है। देखिए, वो साउंड बाइट देखिए, हम तथ्यों पे बात करते हैं, राइट? हम किसी की साइड नहीं लेते हैं, हम तथ्यों पे बात करते हैं। आज जो बजरंग दल के महाशय थे चौबे जी, उनका साउंड बाइट चला है पैकेज में, और साउंड बाइट क्या बोल रहा है कि भाई हम इनको अंदर जाने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। देखिए, विरोध करना बंसल जी एक बात है, बिल्कुल विरोध करिए, जिस चीज इस देश में सबको विरोध करने का है ना, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि वो
ये डिसाइड करे कि कौन महाकाल में जा सकता है और कौन नहीं जा सकता, और आज बजरंग दल ने यही किया है। गलत था। नहीं, बिल्कुल हमारा देखिए विरोध प्रदर्शन का हमारा अधिकार है ना जी। हम विरोध करेंगे। आप देखिए कि भगवान भोलेनाथ हैं, उनका वाहन है नंदी, और नंदी को आप हत्या करके उसको खाने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करोगे और हिंदू समाज से ये कहोगे कि उसका विरोध न करें, ये कैसे संभव है भाई? तो ये अकल्पनीय है। नहीं तो श्रेया जी आपको भी समझना पड़ेगा। देखिए आप हिंदू हैं, आपने स्वयं कहा कि मैं देखिए मैं जो है नॉन वेजिटेरियन तो हूं लेकिन बीफ ईटर नहीं हूं। क्या ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए? क्या उनको नहीं पता कि बीफ का मतलब क्या होता है? और हिंदू समाज की भावनाओं को चिढ़ाने का काम, उनको आहत करने का काम उन्होंने किया है सिर्फ अच्छी पब्लिसिटी के लिए। क्या ठीक है क्या? ये बताइए मुझे, आप बताइए। नहीं, मैं कहती हूँ अगर कोई बीफ खाता है और वो सच बोले उसमें कोई नुकसान नहीं है। इस देश में सबको सच बोलने का तो हक है ही। ये अच्छी बात है। पंडित जी भी ये बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आपको जो खाना है आप खाइए, लेकिन आप बोलिए मत। ये कैसा समाज है भाई? करें आपको जो करना है, खाएं आपको जो करना है, लेकिन आके मत बोलिए। क्या बात हुई बंसल जी? जी आप बोलिए ना, मैं कहता हूँ आप भी बोलिए। क्या बोलूं? देखिए मैंने तो सच बोला ना, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ लेकिन बीफ नहीं खाती। लेकिन जो खाता है उसके खाने चैनल पर बोलिए। मैं कहता हूँ आप चैनल पर बोल के दिखा दीजिए। कोई अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। बंसल जी आपसे शुरुआत करना चाहती थी, आगे बढ़ते हैं। कुनिका लाल, वुड यू वांट टू कम इन हियर? Have you been able to make sense of this entire controversy and why it has played out and why this outrage after 11 years? Oops, you'll have to unmute yourself. Kanika ji, you'll have to unmute yourself. Yeah, sure, Shreya ji. Nice to see you after a long time. And I'm just, I don't know whether to laugh or cry because Vinod Bansal ji शायद प्लास्टिक के चप्पल पहनते होंगे, क्योंकि चमड़े के चप्पल तो पहनते नहीं होंगे ना, because चमड़ा भी तो गाय से आता है। तो आई एम श्योर ही वेयर्स प्लास्टिक के चप्पल। दूसरी बात उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा था कि जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ भी खाए उनको कोई मना ही नहीं है, तो वो कुछ भी खाए और ना बोले तो वो आ सकते हैं। रणबीर कपूर ने 11 साल पहले बोला था कि वो बीफ पसंद करते हैं, और वो भी एक फूड शो में, जहां पे कुणाल विजयकर शायद उनके साथ हैं, और वो फूड शो में कह रहे हैं। और उन्होंने अभी बंसल जी ने कहा कि ओछी पब्लिसिटी। भाई 11 साल पहले तो उनको पता भी नहीं था कि ब्रह्मास्त्र बनाने वाले हैं, तो ये ओछी पब्लिसिटी उन्होंने सोच के कहा था कि हाँ मैं 11 साल बाद जब मैं महाकालेश्वर जाऊंगा तो वहां पे ये वाला स्टेटमेंट यूज होगा। What nonsense is this? मैं श्रेया जी, I don't want to get into this argument of the whether this is a proper argument or not, but I only want to ask you one thing. I want to know, don't you think the people who swore, जिन्होंने कसम खाई थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे, वो आर्टिकल 25 की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? जो हमको संविधान ने हमें जो दिए हैं, जो हमें जो हक दिए हैं, उसके लिए वो कब आवाज उठाएंगे? वेरी गुड। चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो अपने नरेंद्र मोदी जी हो, या कोई भी। और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो बीजेपी ये वीएसपी के गुंडों को कैसे और आप कह रहे हैं कि वो अंदर नहीं जाने का उनका वो चॉइस था। आप मुझे बताइए, जब आप नहीं बंसल जी, शट अप योर लैंग्वेज। क्या बंसल जी, एक मिनट प्लीज, नो स्वेयरिंग ऑन दिस शो। बंसल जी एक मिनट। कुनिका गिव मी 1 मिनट। बंसल जी आप मेरी बात सुनिए। बंसल जी देखिए, मैं आपसे अरे व्हाट इज दिस? नो आपको हमारे संविधान के प्रति विनोद जी, बंसल जी सुनिए, निवेदन है कि चिल्लाने वाले चैनल बहुत हैं। बंसल जी चिल्लाने, एक मिनट कुनिका, गिव मी अ मिनट। बंसल जी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बंसल जी, चिल्लाने वाले चैनल बहुत हैं, ये चिल्लाने वाला चैनल नहीं है। मैंने सुना ना आपने क्या बोला। अब अगर कुनिका कुछ बोल रही है, उनको बोलने दीजिए ना। उन्होंने तो किसी अभद्र लैंग्वेज का यूज नहीं किया, तो शटअप की बात कहां से आई भाई? हम सब सभ्य लोग हैं, इसी देश के वासी हैं। तो विनोद जी, काइंड रिक्वेस्ट, सुन लेते हैं बाकी लोगों को, आपके पास वापस आऊंगी। आपको पता है मैं आपको हमेशा चांस देती हूँ। कुनिका प्लीज गो अहेड, कंप्लीट योर पॉइंट, देन आई विल गो टू रिया डिसूजा। आई वांट टू से कि आप देख लीजिए, आज अगर कोई स्टार मंदिर से लौटा है तो आप मुझे बताइए, कॉमन मैन के दिल में, जो नॉर्मल इंसान है, उसके दिल में कितना डर होगा
क्योंकि एक स्टार के साथ हमेशा पुलिस होती है, हमेशा सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद वो वापस चले गए। इसका मतलब कितना कितना भयावह वो वहां पे मौजूद होगा कि उन्होंने सोचा कि नहीं, ये सेफ नहीं है। और एक सबको पता है कि आलिया भट्ट प्रेग्नेंट है। ये तरीका है, ये आपका हिंदुत्व है। ये आपके शिव जी इससे बहुत खुश हो जाएंगे। हिंदू मैं भी हूँ सरकार, मैं भी नॉनवेज खाती हूँ, और मैं श्रेया जी की तरह ये राइडर नहीं डालूंगी कि मैं बीफ नहीं खाती। मैं खाती हूँ कि नहीं खाती हूँ, ये आपका मुद्दा नहीं है, ये मेरा पर्सनल मामला है। और इन्होंने कोई पब्लिसिटी के लिए ये नहीं कहा था 11 साल पहले। बकवास बंद कीजिए। अब मुझे आप शट अप बोलिए। No shut up here. नहीं, please, no, you know, let's just keep it civil here. Ria D'Souza, would you want to come in here? Was this a deliberate targeting of a celebrity that if you and I had gone, no one would have bothered? But because it is Ranbir, because it is Alia, it's a good opportunity to get into the news and the headlines. These guys were deliberately targeted. Exactly. Exactly. First of all, thank you very much for having me on the show. And I must say, very, very well spoken, Kanika ji. Very well spoken. You were absolutely spot on. Shreya, I must say, first, whatever Kanika ji has said, it's absolutely right. I will just add on to it. Whatever is happening right now, it's actually, instigation through social media. May it be Twitter, may it be Instagram. Nowadays, these बजरंग दल, ये जो छोटे छोटे लोग हैं, ये सोशल मीडिया में लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, और ये सब करने के लिए सिर्फ पैसों के चक्कर में. This is actually happening only to earn 2 rupees, 5 rupees, or whatever rupees it is. It is only for all that. But reality is that this is just, they just throw these people over there, tell them I'm giving you money, throw them there and make them do the protest. ये आजकल ना ये असली मुद्दों पे लोगों को भड़काने के लिए ये सब किया गया है. चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, इस मुद्दों पे बात नहीं करनी है तो ये लोगों को भड़काओ इस बारे में. अभी हिंदू के समाज के बारे में भड़काओ और हिंदू खतरे में बोल के उनको भड़काओ और उनको भेज दो ये सब करने में. Because Bollywood is a place where everybody is attracted to. It becomes a news if you tag Bollywood. So this is the reason why Bollywood is attacked. Soft target, everybody can come to know. आपने इनको attack किया तो लोग news बन जाता, तो इसीलिए वो लोग आए हैं. This is exactly what is happening in our country right now. Rahul Ishwar, would you agree with that? Yeah. Would you agree with that targeting Bollywood and this entire boycott Bollywood is now a mini industry, and the fact is that all these protests that you see are orchestrated, deliberate because जो असली मुद्दा है उससे ध्यान भटकाना है. Back in 1857, our first war of independence started also because of cow, respect and sentiments for cow. Cow is such a sensitive, serious issue. I know Mahatma Gandhi, father of the nation, was a Gorakshan. Article 48 of Indian Constitution, Baba Saheb Ambedkar balanced it because he understood the sensitivity of the cow. I'm a huge fan of Alia Bhatt, a huge fan of Ranbir Kapoor. We really respect him. From a great family, we all cherish. At the same point of time, celebrities, personality to have a thick skin, like Arun Jaitley once mentioned, and they need to engage with the audience. See, Amir Khan, who is a great star, but he understood that he has touched a raw nerve of the audience, and he apologized. So acknowledge and apologize, or at least acknowledge and engage should be the mantra. We all agree there should not be violence. Rahul, why should I apologize, or why should anybody in this country apologize for what they eat? Rahul, please help me understand. Why should anyone in this country apologize for what they eat? No, Kiran Rijiju is a minister in the government of India. He says openly that he eats beef. The Northeast, it's not unlawful in this country to eat beef in the Northeast or in Kerala. Should he also apologize? 2 points. One, not only in Northeast, in many parts of Kerala, in Goa, we respect the dietary diversity. At the same point of time, cow is a very sentimental thing that we should remember. Father of the nation, Gandhi bought an ashram in the name of cow. He was a Gorakshan. He understood the sensitivity. But he went and said, I respect cow as my mother, but I don't have a right to injure others. But there is a sensitivity regarding cow, beef, and such topics. If celebrities and public personalities who are very tall in covering stage, they can be more mindful, they can be more sensitive, if they can be more respect
It would be great. Just like if somebody is going to Mecca and saying, I'm going to have pork and going to holy Mecca, it will be offensive and insensitive. So Ranbir can be a bit more less tone deaf. Our celebrities should not be tone deaf, and Hindu right-wing sentiments should be respected. Yes, no violent protest should be there, but sensitivities are involved. That respect to sensitivity should be there. Ravi Rai, do you agree with the agree with what what my friend from Kerala is saying, Rahul Ishwar, that celebrities need to be more mindful? They know that things will come to bite them, so they need to be more careful. They need to be extra sensitive to what is being said. So you mean to say that the celebrities, they have to lose a certain amount of freedom of speech because they're celebrities, or the freedom of expression because they're celebrities? I mean, does Rahul Ishwar means to say that? Kyunki celebrities hai. No. Rahul, let him complete his point. Let me complete, Rahul. और ये जितनी भी बात चल रही है, नंबर वन तो सबसे पहले I would absolutely peel off the constitution, what article says what. You just forget everything, you know. And the other thing कि हम लोगों ने उनको बनाया, हम लोगों ने तो politicians को भी बनाया है भैया, सिर्फ film stars की बात क्यों कर रहे हो? हम लोगों ने तो politicians को भी बनाया है, वो किसकी वजह से बने हुए हैं? ये जो fringe elements भी हैं, वो किसकी वजह से बने हुए हैं? उन लोगों की वजह से बने हुए हैं. Anyway, now going away from it, my only thing that you began with the Pujari in the beginning was absolutely right. कि रणबीर सिंह ने 11 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया एक फूड शो पे, मैं बीफ खाता हूँ. बीफ में उसने गाय तो नहीं बोला ना भैया, उसने कहा मैं बीफ खाता हूँ. अब आपने उसमें से गाय पकड़ के बाहर निकाल ली. भाई बीफ में 17 किस्म के बफेलोज हैं, और ये कौन चेक करेगा? माय ओनली पॉइंट इज दैट प्लीज लेट अस नो वंस एंड फॉर ऑल कि भैया रवि राय ये रूल है, ये वन बुक है, ये वन सेट ऑफ रूल्स है, ये इसके बाद आपका रिलीजन ये है. आपको जितेंद्र खुराना, अब एक लिस्ट पकड़ा दीजिए. कह रहे हैं रवि जी क्या खाना है इस देश में और क्या नहीं खाना है. बात बीफ की हुई थी, गाय वहां से निकाल ली गई. कुछ बतंगड़ बनाना था. सुन लीजिए, अगर सुन लीजिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी कुछ बतंगड़ बनाना था, इसलिए 11 साल पुरानी बात छेड़ दी. बोलिए. पहली बात, जो ईटिंग प्रैक्टिसेस होती है वो हमारे धर्म का भाग है. ईटिंग प्रैक्टिसेस के लिए धर्म शास्त्रों में, वेदों में, स्मृतियों में बहुत कुछ लिखा हुआ है. मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हमारे यहाँ नवरात्रे होते हैं तो उन दिनों में प्याज भी नहीं खाया जाता. ईटिंग प्रैक्टिसेस धर्म का भाग है. 2 उदाहरण मैं आपको और दे देता हूँ. पिछले वर्ष आसाम में कानून बनाया गया कि मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ नहीं बिकेगा. आपको मैं ये भी बता दूं, जगन्नाथ टेम्पल में जब ममता बनर्जी के जाने की बात हुई थी तो वहां जगन्नाथ टेम्पल के पुजारियों ने विरोध किया था कि ममता बनर्जी ने बीफ का समर्थन किया, अगर वो बीफ खाती हैं तो वो यहाँ नहीं आए. उन्होंने विरोध किया. ये कोई पहली बार नहीं हो रहा. अब आप उनको भी कहेंगे कि उनको कोई वहां पे पब्लिसिटी चाहिए, ऐसा नहीं है. बीफ की बात है, उन्होंने इसको माना. 11 साल अगर पहले बात कही थी तो वो कोई अपराध, आज की डेट में वो अपराध मुक्त नहीं हो गए. अपराध है, चाहे वो कानून की किताब में हो या धर्म की किताब में हो. आपको ये मानना पड़ेगा कि वो 11 साल, देश का कानून 30 साल पहले भी कोई अपराध किया गया. आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए. प्यार से आने वाले हमें धर्म की बात ना सिखाएं. वो इंडस्ट्री जो कास्टिंग काउच और ड्रग्स में डूबी हुई है, वो हमें धर्म शास्त्र ना सिखाएं. पता नहीं ये लोग धर्म के बात बताने के आ जाते हैं. अरे खुराना जी, यहाँ पर एक कुनिका लाल जी कह रहे थे खुराना जी, अपनी बेल्ट लेदर की नहीं पहनता. मैं पूर्ण शाकाहारी हूँ, मैं मांसाहारी भी नहीं हूँ. 1 मिनट, अरे आप बोलना दीजिए मुझे. आपने 1 मिनट देना है, उसके बाद 2 मिनट आपके हैं. ठीक है. मैं ना लेदर के जूते पहनता हूं, ना लेदर की बेल्ट पहनता हूं. मैं कह के चलता हूं मैं बिल्कुल पूर्ण शाकाहारी हूं. ओके. और अगर वेदों की बात करूं, वेदों में हमारे जो धर्म शास्त्र का जो मुख्य बिंदु है, जो धर्म को डिफाइन करते हैं वेद, उसमें मांसाहार को प्रतिबंधित किया गया पूरी तरह. जो लोग यहाँ मांसाहार कर रहे हैं वो भी गलत है, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन धर्म की दृष्टि में वो गलत है. किरण रिजिजू की बात करी, हम उसका भी विरोध करते हैं. ऐसे लोगों को मंदिर नहीं जाना नहीं चाहिए. मैं कह रहा हूं, चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, उनको नहीं जाना चाहिए. आपको पता है इस देश की कितनी बड़ी आबादी नॉन वेजिटेरियन है? नंदी को आपको पता है ना
कि इस देश में वेजिटेरियन कम है और नॉन वेजिटेरियन ज्यादा है। 70% लोग जो हैं इस देश में मांसाहारी हैं। ज्यादातर हिंदू मांसाहारी ही हैं। आप ठीक कह रहे हो, ये इस देश का दुर्भाग्य। हाँ, ज्यादातर हिंदू मांसाहारी हैं, जो इस देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये भी तो कह रहा हूँ कि हमारा दुर्भाग्य है। ये पिछले 100-200 वर्षों 300 वर्षों में जो संस्कृतियों का मिश्रण हुआ है, इस कारण है ना। तो अगर 70% हिंदू जो है मांसाहारी हैं, वाई टारगेट आलियन रणबीर। सुन लीजिए, ठीक है, अगर 70% से ज्यादा जो हिंदू हैं मांसाहारी हैं, तो वाई टारगेट दीस टू पीपल अलोन। ना ये सेलिब्रिटी है, ना ये पावर कपल है। हाँ। इनको ब्रह्मास्त्र की जो है प्रमोशन करना था, ये वहां पहुंच गए हैं। हाँ। देखिए रणबीर, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो पुजारी जी थे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। राइट टू प्रोटेस्ट हमें संविधान में अधिकार दिया गया है। बिल्कुल राइट का विरोध किया गया है। एक अहिंसक प्रोटेस्ट था। जो हमारे सबसे बड़े धर्म गुरु हैं पूज्य शंकराचार्य जी, रणबीर जी को उनके पास जाना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करके दर्शन करें दोबारा। प्रोटेस्ट के लिए एक जगह क्यों भाई? ओके, लेट कुनिका टॉक। ठीक है खुराना जी, देखिए मैंने आपको 3 मिनट दिए हैं। अब आपने बोला था 2 मिनट मेरे, तो रुक जाइए जरा खुराना जी। मैंने आपको पूरा टाइम दिया है। कुनिका वांट्स टू रिस्पॉन्ड एंड देन आई वांट टू लेट रवि राय कम इन। पहली बात जो पंडित जी ने कहा और जो आप कह रहे खुराना जी, राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन एक जगह निश्चित होती है। आप पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वो गैर कानूनी है। समझे आप? उसका परमिशन था, अगर था तो फिर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसे परमिशन कैसे दिलवाया। पुलिस को जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात आपने जो कहा कि ये देश में मिशन, आप मुझे एक बात बताइए, राम जी जब हिरण के पीछे गए थे तो किस लिए गए थे? उसको शिकार करने के लिए गए थे ना। आप बताता हूँ मैं आपको, बोलूं इसलिए गए थे, पूछ रही हूँ आपको। आपने पढ़ा होगा ना। हाँ जी एंकर जी, बोलूं मैं? बोलिए जी, बोलिए। मैं बोलूं 30 सेकंड बोलिए। प्लीज बोलिए। बोलिए जल्दी। ये जो कुनिका लाल जी जो कास्टिंग काउच की इंडस्ट्री से आती हैं, नहीं और गलत खुराना जी, अगर आपने एक बार फिर एक मिनट खुराना जी, इफ यू गेट पर्सनल इवन वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू रिमूव यू फ्रॉम दिस डिबेट। मैंने आपसे पहले ही बोला है, ये सभ्य लोगों की डिबेट है। डोंट हिट बिलो द बेल्ट। उनकी इंडस्ट्री खुद मानती है। नहीं, it doesn't affect me because I don't come from casting couch. नहीं Fortunately, वो आपको पता है ना, वो एडवोकेट हैं। खुराना जी पता है ना, उन्होंने लॉ पढ़ा है, वो एडवोकेट है। मैंने आपको नहीं कहा। एक मिनट कुनिका जी, मैंने आपको नहीं कहा। मैंने कहा इंडस्ट्री डूबी हुई है। मैंने आपको नहीं कहा। मेरी इंडस्ट्री को कहा। नहीं कुनिका जी, मैंने आपको नहीं कहा। मैंने कहा इंडस्ट्री डूबी हुई है। आपने दोबारा अपने मुंह से शब्द निकाला। हाँ, तो है ना, वो तो मानते हैं आपके। नहीं ठीक है खुराना जी, मैंने आपको 2 बार वार्निंग दे दी है। लेट्स खुराना प्लीज डिप द ऑडियो ऑफ मिस्टर खुराना। खुराना जी, मैंने आपको 2 बार वार्निंग दी है, 2 बार वार्निंग दी है। डिप द ऑडियो। आई एम गोइंग टू आस्क माय प्रोड्यूसर टू डिप द ऑडियो ऑफ मिस्टर खुराना। प्लीज डिप द ऑडियो ऑफ मिस्टर खुराना। कुनिका, मेक द पॉइंट दैट यू आर, प्लीज गो अहेड एंड मेक द पॉइंट यू आर मेकिंग। मैंने कहा आप जैसे पॉलिटिशियन लोगों का शोषण करते हैं, रेपिस्ट को आप लोग हाथ बनाते हैं। मेरे इंडस्ट्री, मेरे परिवार, मेरे कर्म भूमि के बारे में आपने दोबारा ऐसा कहा तो मैं आपको जेल के सलाखों के पीछे डाल दूंगी, जान लीजिए आप। और आप लोगों को स्टार्स की जरूरत पड़ती है अपने रैलियों में, वरना आपको कोई 2 टक देखता नहीं है, समझे? कोई कास्टिंग काउच इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री नहीं है। आप अपने पॉलिटिशियंस और आपके हिंदू धर्म में देखिए क्या हो रहा है। हिंदू मैं भी हूं, मैं लिंगायत हूं। आज एक लिंगायत पंडित ने क्या किया आपने देखा? वो हिंदू नहीं है। बकवास करते हैं आप लोग। मीट खाना बहुत बड़ी बात हो गई और लोग मर रहे हैं, लोगों का शोषण हो रहा है, लोग गाय के नाम पे बलि चढ़ रहे हैं, वो सब ठीक है। उसके लिए आपको कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखता है। बंद कर दीजिए मीट एक्सपोर्ट्स, बंद कर दीजिए। सबसे ज्यादा रेवेन्यू बीफ एक्सपोर्ट से आता है, आपको पता है? चमड़े से आता है। Would you want to come in here? नरक बना दिया आप लोगों ने। Okay, Kunika, we've heard you. Ravi Raji, would you want to come in here? It's been a rather heated debate, and what has happened
in Ujjain. Tempers were running high there as well. But are you particularly disappointed at the way the government reacted to what happened? One would have thought that the government would be a little more proactive in stopping these protests. It didn't happen. When the protests got over and the Home Minister was asked a pointed question about why the protests took place, and isn't it shameful that you have a high-profile couple that comes to visit Mahakal temple before the release of their film, the minister turns back and says Ranbir should have been more careful about what he said, that he hurt Hindu sentiment, also almost saying that he deserved this. Certain disappointment, definitely. I mean, you wake up in the morning and you get a call from a channel that you got to speak on something, and your very first reaction is, "Ab kya ho gaya, yaar? Ab kya ho gaya?" I mean, you've reached a point where, agar koi bulata hai, ab kya ho gaya? You know, and certainly, I think the government should step in. I mean, things are either you tell us, is it just the beginning? I mean, of what is going to happen, or the last 70 years or 80 years or 200 years, whatever he's talking about, those were the right years. And now what we are going to see another centuries to come, is this what we are going to see? मतलब कल को तो मुझे लगता है कि ये ऐसा हो जाएगा कि अगर मेरी बेटी ने बिंदी नहीं लगाई और अगर उसने घूंघट नहीं किया तो रास्ते पे थप्पड़ मार देंगे उसको. मतलब where are we coming from? Was that right, or where are we going? I mean, there is definitely a disappointment. Where is the government? I mean, कल को ये decide करेंगे मुझे मंदिर जाना है या नहीं जाना है? ये कौन होता है decide करने वाले मुझे मंदिर जाना है या नहीं जाना है? I mean, this is very, very disappointing. I really do not know, but this is very disappointing. I mean, if somebody wants to get into a temple, you're stopped because then you bring about कि हमारे वेद ये बोलते हैं, पुराण ये बोलते हैं. अरे भाई, पिछले 70-80 साल, 100 साल तो हमारे साथ हुआ ही नहीं, कभी भी ऐसा. We've heard from you, and I want your patience. Ek minute. Yes, I know you want to speak, Rahul Ishwar, but I have 4 callers, and I want to come to you after I hear from at least 2 of them, so that you know what the people of this country are thinking as well. We know what all of you are thinking. Let's hear what the people of this country are thinking as well. रुक जाइए बंसल जी, सुन लेते हैं. Captain Jaspal, you're calling us from Rohtak. Please go ahead. I got a chance. Out of the 7, 5 of you are very sensible, very, very well-read people, very balanced people. Cheer up. It is not the end of the world. If the 2 people try to score a self-goal, they are letting their party down, they are letting their religion down, and then they are scoring a self-goal against the government. Why give them that kind of importance? And all of you are absolutely right. They are absolutely wrong. They are nobody to decide the fundamental right to 81, 14, 16. And let us not give them the importance. They want to be the self-referring so that they can get their case by nothing else. Thank you. Thank you, Captain Jaspal. Dr. Rajiv is calling us from Bangalore. Dr. Rajiv, please go ahead. I think we must respect both the sentiments of minorities as well as majorities. And this is a sensitive issue. But I think the appropriate forum for this is either parliament or a referendum. So if the BJP has a majority in parliament, and if they want to introduce a beef ban, they should do it through parliament, not through vandalism. And alternately, we should adopt referendums as done in Western democracies and put this beef ban before the nation. And if the majority decides on a beef ban, then we accept it. So the way to do this is either through parliamentary democracy or through referendums, not through vandalism. And that's my point. Thank you, Dr. Rajiv, for that phone call. But many would say, would that be, the majority riding a roughshod? After all, in this country, everyone has a right to eat what they want to eat. But Suresh Krishna also calling us from Bangalore. Then we'll take a caller from Calcutta, and I'm going to go to our guests. Please go ahead, Mr. Suresh Krishnan. Yeah, hi. This is Suresh Ramakrishna from Bangalore. Actually, people, what they should eat and how they should behave, the government cannot dictate terms unless and until it is disturbing others or the harmony in the society. The government should not interfere whether what people should eat. People have been eating the food from so many years.
and they have learnt what to eat. How the government will intervene and decide. So that's the first point. And again, see, the faith is also like whenever you are entering the temple, you should not eat meat and go. And whatever it is, who are the people to decide? For example, in Hinduism also, Aghoris, they eat meat. No, I mean, and they worship Shiva. Correct. And Shiva, Lord Shiva is supposed to be the most forgiving God. In fact, he's that one God who believes in complete diversity. We there's a reason why we say Shivji ki Barat. All sorts of people join him. Christopher, you're calling us from Calcutta. Please go ahead. Then I'm going to go back to my guests. Yes, Mr. Krishnan is very correct. And also on the clothing that people wear, whether it's their religious belief, whether it's for their protection, I don't. Yes, with Krishnan, I really agree to what he says, but I want to elaborate that people should be allowed to wear what they want. In Karnataka, I've seen a big hullabaloo about hijab. I don't understand why. When people can wear ghumta in Rajasthan, why can't the Muslims wear hijab? Another thing is, we have a dumb prime minister. Till he doesn't come out and be strong on these bigots, we are not going to get these bigots changing any attitude. They're all getting strength and confidence because he is silent, and silence is also a silent acceptor. But sir, this is your personal view, and I really don't agree with that. To drag the Prime Minister into this is something that is happening in Ujjain. Million things happen across this country. Can you expect the Prime Minister of this country to step in and comment on everything? Really not. I think you're being unfair to the Prime Minister here. Rahul Ishwar, come in here. You've heard all the viewers. Speak up when the constitution is being violated. Just one point. Just one point. Just one point. It's a submission, ma'am. Okay. 2 points. Kunika, I'll give you a minute, Kunika. First, let Rahul Ishwar make it. That we should not have any Islandism regarding cows. He was very categorical. He said go sevak, but we should not have Islandism. And I'm a Hindu activist working for the past 15 years, taking up cases. I would like to regret to Kunika madam and Ravi Rai sir regarding the uncharitable couples regarding Bollywood, which gave us movies like Border, Legend of Bhagat Singh, Sukhdev Basant, Mangal Pandey, Changdiya. Rahul, unfortunately what's happening is I'm interrupting you here because your audio is not clear at all. So can we do something to fix your audio and see if that can be fixed, because I can barely make out what you're saying. Kunika, you were coming in, yes, when I said that the Prime Minister cannot be held responsible for everything that happens in this country. इस देश में कुछ ना कुछ होता रहता है. Does the Prime Minister have time and the bandwidth to come out and comment on every small thing? नहीं. श्रेया जी, जब प्राइम मिनिस्टर को लोगों को विश करने के लिए टाइम होता है ट्विटर पे, कुछ भी बोलने के लिए अपने भाषण में जो वो बोलते हैं लोगों के खिलाफ, खास करके ऑपोजिशन के खिलाफ, बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नीड नॉट हैव सेड इट, ही वाज लोअरिंग हिज स्टेचर. आई वांट टू आस्क यू, वी ऑल रिमेंबर इन 2014 when the great prime minister, when he was elected and he went to the to take his oath ceremony, and he went and he नतमस्तक हुए थे पार्लियामेंट में. और जब उन्होंने ओथ लिया था, उन्होंने इस संविधान की रक्षा करने का ओथ लिया था. हमारे देश में 2014 से लेकर आज तक इतने सारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा. ये कब बोलेंगे? हमारे जो आर्टिकल्स हैं, जिन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक दिए हैं, उनके खिलाफ जो लोग आते हैं, लोगों हमारी जो हक है उसको छीना जाता है, उसके लिए भी नहीं बोलेंगे. तो फिर क्यों कहा आपने कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप नतमस्तक होके कि आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे? उसके लिए तो बोलिए. बंसल जी, I want you to respond. खुराना जी, नहीं, आप अभद्र लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं. I'm not going to let you come on, not let you say anything. खुराना जी के पॉलिटिक्स और उनके हिंदू लीडर बहुत ही स्वच्छ हैं. वो तो रेपिस्ट को गालियां लगाते हैं, वो तो बच्चियों का रेप करते हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं. नहीं, खबरदार जो मेरे बॉलीवुड के बारे में कुछ कहा. कुछ नहीं. अब let's just concentrate on the topic at hand. बंसल जी, you've heard everyone. एंड आपने जितने कॉलर्स आए, आपने उनकी भी बात सुनी. ये कॉलर्स प्लांटेड नहीं थे, ये ऑर्गेनिकली जिसने कॉल किया उसका फोन लग गया. हमें पहले से नहीं पता होता कि कौन कॉल करने वाला है. आपने सबकी बात सुनी. अब आप मुझको बताइए
8:47 हो रहा है। हमने ये शो 8 बजे शुरू किया था। अब आप मुझको बताइए कि जो उज्जैन में हुआ वो गलत था या नहीं था? देखिए 45 मिनट्स के बाद मेरे पास आ रही हैं श्रेया जी। मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दें। कैन यू डू दैट? एब्सोल्युटली, गो अहेड सर। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आपके डिबेट में मुझे ये पता होता कि इस तरह से वन साइडेड डिबेट चलेगी और जिस तरह से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए उनको गाली देने वालों को, गुंडा कहने वालों को, तेरा भगवान, मेरा धर्म तेरा धर्म, और अपना अपना सर्टिफिकेट बांटने वालों के लिए आप अगर फौज तैयार करेंगे तो मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद को बुलाने की जरूरत नहीं थी आपको। डेफिनेटली आई अपोलोजाइज टू दी कंट्री दैट आई पार्टिसिपेटेड द डिबेट ऑफ द मिरर नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम। इसीलिए मुझे पता था कि ये एजेंडा नहीं चले। मैंने पहले गेस्ट कोऑर्डिनेशन को बोला था, यू काइंडली स्पीक टू मी, आपको जो पूछना है मेरे से पूछिए। बंसल जी, मैंने तो सवाल पूछा, हर प्रश्न का उत्तर देना जानता है। मैंने तो प्रश्न पूछा, आप तो मुझ पे नाराज हो गए। दिया है तो मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बोलिए। आपने नहीं दिया, लेकिन आप ये मत बोलिए कि हम यहाँ कोई एजेंडा चला रहे हैं ना, ये तो मत बोलिए बंसल जी। बीच में नहीं बोलिए श्रेया जी, आपने हर हिंदू को टोका है। आपने इस डिबेट में हर डिबेट देखिए, नहीं, लेकिन यहाँ पे तो सारे हिंदू ही हैं। एक मुर्तजा बैठे हुए हैं, उन्होंने तो बोला ही नहीं है। लेकिन वो जो तीनों हिंदुओं को जो गाली दे रहे थे, किसने हिंदू को गाली दिया? किसने हिंदू को गाली दिया? हिंदू समाज को गुंडा भी बोल रहे हैं। वो जो उज्जैन में हुआ वो तो गुंडागर्दी थी। क्या बात कर रहे हो? जो बजरंग दल के लोग थे वो गुंडे ही थे। फीडर डाउन नहीं किया आपने, उसका फीडर डाउन नहीं किया श्रेया जी। बंसल जी, अच्छा चलिए बंसल जी, अब आप और मैं, ऐसा है बंसल जी देखिए, शो में थोड़ा सा टाइम है। मैं आई वुड अप्रिशिएट कि आप अपनी बात रखें। लेट्स नॉट गेट पर्सनल। हम दोनों मैं आपको फोन करूंगी 9 बजे। मैं आपको फोन करूंगी 9 बजे। मैं आपको फोन करूंगी 9 बजे और आपको मुझसे कुछ कहना होगा तो आप बोलिए। अभी फिलहाल डिबेट पे रहते हैं, ठीक है? आप अपना पॉइंट करिए। आपने बोला श्रेया जी 1 मिनट दो, मैं आपको दे रहा हूँ। प्लीज ये मत बोलिए कि यहाँ एजेंडा रन कर रहे हैं। हम किसका एजेंडा रन करेंगे सर? एजेंडा नहीं चला सकते। हम किसका एजेंडा चलाएंगे? एजेंडा नहीं चला सकते। हम किसका एजेंडा चलाएंगे यहाँ पे बताइए जरा। हम तो चिल्लाने वाले चैनल है नहीं। आपको एक्चुअली आदत है कि वो एजेंडा चलाने वाले चैनल में आप जाते हैं, इसलिए आपको न्यूट्रल चैनल्स की आदत नहीं है। देखिए प्रॉब्लम ये है। चलिए अब खत्म। देखिए अगर आप और मैं बहस करते रहे तो आगे बहस नहीं बढ़ेगी। किसी को मेरे जैसे प्रवक्ता को आपने 40 मिनट के बाद समय दिया। सबसे पहले शुरुआत किससे हुई थी? 1 मिनट चाहिए मुझे। 1 मिनट भी देने को तैयार नहीं। आप 2 मिनट लीजिए। ना राहुल ईश्वर को पूरा बोलने दिया और नहीं दूसरे को प्रण, उनका तो फीडर ही डाउन कर दिया आपने। फीडर ही डाउन कर दिया। आप मुझे बताइए कि हिंदू को कोई गुंडा कह दे तो आपको एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर और किसी महिला को ये बोले कि आप कास्टिंग काउच की इंडस्ट्री से आते हैं वो ठीक है बंसल जी? नहीं, महिला कोई किसी महिला को बोले कि आप कास्टिंग काउच की इंडस्ट्री से आते हैं वो ठीक है। किसी महिला को पुरुष को गुंडा बोलने का अधिकार है क्या? किसी संगठन को गुंडा बोलने का अधिकार है क्या? आप बजरंग दल को गुंडा कैसे बोल सकते हो? You should apologize to the nation. No, I will not apologize to the nation. They should apologize to the nation for giving this nation a bad name. You will have to apologize. No, you will have to apologize. Why on earth will I apologize? Why on earth will anyone apologize for what? For calling people who did what they did gundas? They are gundas. They should apologize to all of us. नहीं, क्या गलती किया? अच्छा, कोनिका wants to come in. काम किया जो गुंडाई का काम है। चलिए अब कोनिका को अंदर, अब देखिए मैंने आपको टाइम दिया, आप मुझ पे हमला बोल दे रहे हैं। आप मुझे ये भी कह रहे हैं कि हिंदू को बोलने नहीं दे रहे। राहुल ईश्वर का ऑडियो ठीक नहीं था इसलिए मैंने उनको बोलने नहीं दिया। 1 मिनट रुकिए। राहुल, इज योर ऑडियो फाइन नाउ? Just one submission. No, you make 2 submissions because I am being told कि आप हिंदू को बोलने नहीं दे रही हैं। क्या हो क्या रहा है देश में? Just one submission. हाँ, 1 मिनट बंसल जी, सुन लीजिए। आपके हिंदू भाई बोल रहे हैं। राहुल ईश्वर बोलिए। Vinod ji, myself और Khurana ji, we are unashamedly protective of Gau Mata. We are proud that we are Gaurakshaks, we are proud that we are Gaurakshaks, and we are proud of it. Second point, I totally concede as a Hindu activist. I would like to express regret regarding the uncharitable comments regarding the Bollywood, which gave movies like Border, Chak De India, Mangal Pandey, Rang De Basanti, and so many other patriotic movies. Please remember the sensitivity of this subject. We are talking in such heightened passion because cow is such a sensitive topic. That's the reason why Article 48 is there.
That's the reason why Mahatma Gandhi was a Gorekshan. That's the reason why India's first freedom struggle began in the name of the cow. So the sensitivity involved, please respect and don't use words like gundas or either caustic charge from both sides. Okay, okay, I understand that, but Rahul Ishwar, Shreya ji, please. एक Shreya मिनट. ji, please. अच्छा, okay, go ahead, Konika. Them a gunda because I want to ask Mr. Bansal, did this VHP have permission to stand outside the mandir and do this protest? If they did it without permission, it is not a public place to protest. It is not a place to protest. Then they are gundas because then they are anti-social elements. Rahul ji, simple. Anti-social and gunda. Do you agree with what happened today? Rahul, do you agree with? Would you have led the protest march like this? Show your mentality. Nobody supports violent protest. आपके कहने से कोई गुंडा नहीं हो जाता. लेकिन आपकी मदद ठीक है. Now I have been accused that I am not letting Hindus speak. You know, I am being accused that I am not letting Hindus speak. There are 1, 2, 3, 4, 5 Hindus on this debate and everyone has spoken, but Mr. Murtaza has not spoken. Murtaza, first of all, thank you very much for joining us. I'm afraid I'm coming to you at the fag end, of this debate. I want to ask you how, if at all, this will impact the film that is to release on Friday. Shreya, thank you so much for having me. And first and foremost, let me clarify that I'm not here in the capacity of a Muslim or a Hindu. I'm here as a film critic, and I just this is getting very sectarian in nature. That 5 Hindus, 1 Muslim. I don't like that at all. I just want to speak my words out. Murtaza, that is unfortunately what this debate got reduced to. This was not how it was supposed to be, but this is what it got reduced to. Then that's very unfortunate, I must say. But since I'm a very regular commentator on Mirror Now, and I really appreciate the kind of programming you guys have. I just want to say, and I want to say this from the bottom of my heart, that why are we not respecting our institutions? Why are we holding them to ransom? CBFC has given the movie a UA rating, and if any fringe group or any mainstream group, if they have any issue with the movie, if they have any issue with the movie star, they should clearly approach the court and they should get a stay order if they really think that they are right in this way. But to go out and behave in such an unruly manner, trying to get physical, trying to, go all out and trying to, put such big people, because they are big names. We are talking about Alia and Ranveer. They are probably 2 of the biggest names and they are followed all around the globe. They are not just popular in India. They are global icons. So we cannot threaten our global icons like this. The entire world is looking at India, and somebody mentioned Modi ji. I think Modi ji is the first person to talk about India and talk about India becoming this wish guru. So as wish guru, I don't think that this is the thing that we should set an example. We should actually refrain from all this hooliganism. We should refrain from this kind of aggression, and we should always follow the legal routes, and we must respect our institutions. Okay, that's a sensible note to end this rather fiery and heated debate on. Murtaza, thank you very much for joining us. Kunika Lal, always good to have you on the show. Thank you. Ravi Rai, thank you very much. Ria D'Souza was with us. She's on another channel now. Murtaza was with us. Rahul Ishwar, thank you very much for your time. Vinod Bansal ji, namaskar. Thank you very much. आप थोड़ा आज हम लोगों से गुस्सा हो गए, but I hope कि आप दोबारा मिरर नाउ में आए, क्योंकि आपका आना हमें अच्छा लगेगा. और जितेंद्र खुराना जी, आपने कुछ पकड़ रखा है पेपर. Unfortunately मुझे दिख नहीं रहा है कि उस पे क्या लिखा हुआ है. आपने सही भाषा का इस्तेमाल नहीं किया. Hopefully अगली बार करेंगे आप सही भाषा का इस्तेमाल. धन्यवाद. हो गया टाइम. घर जाने का टाइम हो गया. खाने का टाइम हो गया. Thank you. Good night.